Hello everyone, my name is Aman and today I am going to teach you notice writing. If you are in class 12, especially CBSE board student, then definitely this video is going to help you a lot. Because what happens in your English paper, generally in the creative writing portion, you will get this notice writing for nearly 5 marks. And very few points you have to keep while writing notice writing in your mind. After having 2 to 3 practice of notice writing, you can definitely score 5 on 5 in your paper. So let us start with the notice writing. Before moving towards the format of writing the notice, firstly we should know that what is a notice writing. Why writing of notice is important. So what happens, notice writing is an official communication and it has been generally affixed on the notice board by an organization or by an institution whenever there has to be declaration of any event or celebration, or when we have to convey some important information from person to person. अब क्या होता है, आप अपने स्कूल में पढ़ते होंगे, कॉलेज में जो भी होता होगा, ऑफिस में कुछ भी होता होगा, तो जितने भी फॉर्मल चीजें होती हैं उसमें अगर कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें एक जगह से दूसरी जगह यानी सारे पूरे बच्चे लोगों में या फिर पूरे लोगों में फैलानी रहती है, तो अब हम लोग पर्सन टू पर्सन करके इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, तो क्या होता है कि एक नोटिस बनाई जाती है, फिर उस नोटिस को एक नोटिस बोर्ड में जनरली एफिक्स कर दिया जाता है, जिससे जितने भी लोग रहते हैं नियर बाय के सब लोग को पता चल जाता है कि व्हाट द न्यू थिंग इज गोइंग टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन योर इंस्टीट्यूशन और इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए चलते हैं कि किस तरीके से नोटिस राइटिंग को लिखा जाता है। व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ राइटिंग नोटिस? Firstly, the thing which you should keep in your mind that you have to draw a box before writing notice. अगर आप नोटिस राइटिंग लिखने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना रहेगा, स्क्वायर बॉक्स बनाना रहेगा, which you can easily make with your pen or with your sketch pen. So क्या है? Firstly you have to draw like this box. इसी बॉक्स के अंदर whatever the information is being given in your question has to be written. याद रखिएगा कि इस बॉक्स से बाहर कोई चीज नहीं जानी चाहिए, जो भी चीज है वो इस बॉक्स के अंदर ही लिखी जाएगी। And make sure if you will not draw this box, then definitely your marks will get reduced in your answer sheet. So now what you have to do after making this box, you have to write down the name of institution in bold letters. Bold letters means आपका कोई भी इंस्टीट्यूशन का नेम है, like my school name is Air Force School, तो मुझे एयर फोर्स लिखना है तो मैं इसको बोल्ड लेटर में लिखूंगा like this एयर फोर्स, ओके, स्कूल। तो ऐसे बोल्ड लेटर्स में पहले अपना इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन का नेम लिखना है। डोंट यूज बिग एंड स्मॉल अल्फाबेट्स, ऐसे ना लिखिएगा। You have to write the heading with your bold letters, not with this writing. Now what happens, most of the time what you will see that when you will go through the question of notice writing, so several times the institution name is already being provided in your question. जब आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ोगे, नोटिस राइटिंग में यही चीज का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्वेश्चन, क्योंकि नोटिस राइटिंग में जितनी भी चीजें हम लोगों को छाट के लिखनी पड़ती है वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया रहता है। कुछ चीजें अपने आप से भी लिखनी पड़ती हैं, लेकिन बहुत सी चीजें क्वेश्चन में ही हमें मिल जाती हैं, तो जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चंस के अंदर दिया रहता है उसी इंफॉर्मेशन का हमें इस्तेमाल करना रहता है, अपने आप से कोई भी चीज नहीं लिखी जा सकती है। You should make it sure that if the institution name is being given in your question, then definitely you have to write down that institute name only. अगर किसी भी इंस्टीट्यूशन का नाम आपके क्वेश्चन में दिया गया है तो वही नाम आप लिखेंगे, अदरवाइज नहीं दिया गया है कोई इंस्टीट्यूशन का नेम तो उसकी जगह आप अपना स्कूल नेम प्रेफर कर सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन नेम के लिखने के बाद आती है डेट के लिखने की बारी।
अब डेट कभी भी राइट हैंड साइड पे नहीं लिखी जाती है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, चाहे आप लेटर लिख रहे हो, चाहे आप नोटिस लिख रहे हो। सो डेट इज नेवर बीइंग रिटन ऑन द राइट हैंड साइड। अगर आप राइट हैंड साइड पे डेट लिखोगे तब भी आपके नंबर कट जाएंगे। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू राइट योर डेट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पेज। अब डेट का भी लिखने का एक फॉर्मेट होता है, एक तरीका होता है। लाइक टुडे इज 8 जुलाई 2023। तो अगर डेट कहें तो बेसिकली डेट तो हम लोग ऐसे लिखते हैं दैट 8 of July, month is 6 and year is 23. So this is the format of writing the date. But this type of writing of date is not accepted in notice writing. ऐसे डेट आपको नहीं लिखनी है, पूरी की पूरी डेट लिखनी पड़ेगी जब आप लोग नोटिस राइटिंग में डेट लिख रहे होंगे। कोई भी हो, चाहे नोटिस राइटिंग हो, चाहे एप्लीकेशन हो, नाउ यू हैव टू राइट डाउन फुल डेट, दैट इज 8 जुलाई 2023. This is the correct way of writing the date. ऐसे भी डेट आपको लिखना है। अगर ऐसे डेट लिखेंगे तो नंबर आपके डिडक्ट हो जाएंगे। यही कुछ माइन्यूट सी चीजें हैं जो कि नोटिस राइटिंग करते समय ध्यान रखनी पड़ेगी। अगर ये सारी चीजें आपके दिमाग से स्किप हो जाएंगी तो डेफिनेटली यू विल लूज योर मार्क्स। और ये चीजें तब दिमाग में आएगी जब आप लोग एक दो बार नोटिस राइटिंग की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और हाँ, अगर आप डेट लिख रहे हो तो यू शुड नॉट हैव टू राइट द हेडिंग ऑफ डेट। ऐसे नहीं लिखना है कि डेट लिखा, डेट के आगे डैश डाल के 8 जुलाई 2023 लिख रहे हैं। नो, यू हैव टू डायरेक्टली राइट डाउन योर डेट। डायरेक्टली लिखना है, नो नीड टू राइट डाउन एनी हेडिंग। लाइक इंस्टीट्यूशन का नेम लिखा, सो आपको डायरेक्ट यहाँ पर डेट लिख देना है, लाइक दिस। Got the point? कोई हेडिंग भी नहीं डलेगी डेट की, ठीक? अब डेट के बाद जो दूसरी चीज आती है वो आती है नोटिस की खुद की हेडिंग, जिसको आपको बोल्ड लेटर्स में ही लिखना है। नोटिस की हेडिंग लिखने के बाद यू हैव टू राइट डाउन टाइटल। एक लाइन छोड़ के आपको टाइटल लिखना है, वो भी बोल्ड हेडिंग्स में ही लिखा जाएगा। अब टाइटल जो लिखना है वो आपको क्वेश्चन में ही प्रोवाइडेड रहेगा। कोई भी चीज होगी, एनुअल फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है या फिर कोई कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, कोई ड्राइव होने वाली है स्कूल में, कोई भी टॉपिक होगा वो आपके क्वेश्चन में जरूर दिया रहेगा और उस क्वेश्चन से ही आपको टॉपिक छांट के लिखना है। अब डू मेक इट श्योर दैट टाइटल आपका बहुत ज्यादा लंबा ना हो। इट शुड बी नियरली अबाउट 2 to 4 वर्ड्स, 2 से 4 वर्ड्स का ही होना चाहिए। ये नहीं कि एक पूरी लाइन है या फिर 2 पूरी लाइन का आपका टाइटल ही चल रहा है। टाइटल छोटे होते हैं जिसमें लोगों को ये पता चल जाए कि व्हाट द नोटिस इज अबाउट। अगर कोई नोटिस एफिक्स्ड करी गई नोटिस बोर्ड में तो वो किस चीज के बारे में है तो वो टाइटल बताता है। टाइटल पूरी इंफॉर्मेशन नहीं बताता है। तो टाइटल हमेशा 2 या 3 वर्ड का ही होना चाहिए, उससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। अब इतना लिखने के बाद मेन चीज आती है बॉडी, जो हमें मैटर बीच में लिखना पड़ता है। तो मैटर लिखने में बहुत दिक्कत हो जाती है बच्चे लोगों से लिखने में, तो उसके लिए हम 5 क्वेश्चंस बताएंगे। उस क्वेश्चंस को आपके अपने दिमाग में याद रखना है और वह ये क्वेश्चन जब आप अपने आप से पूछेंगे तो यू विल गेट द आंसर और उसी चीज को आपको मैटर के बीच में लिखना रहेगा। क्वेश्चन है जो कि आपको अपने दिमाग में याद रखना है। पहला है व्हाट, दूसरा है व्हेन, तीसरा है वेयर, फोर्थ व्हाई एंड फिफ्थ इज हाउ। अब मान लीजिए आपका स्कूल है, उनको नोटिस लिखनी है जिसमें मान लीजिए ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन के बारे में बताया गया। अब ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन के बारे में है तो उसमें व्हाट में आएगा
कि क्या होने वाला है, किस चीज के बारे में नोटिस है, तो वो हो जाएगा ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। व्हेन, कब होगा ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन स्कूल में? अब क्या पता क्वेश्चन में डेट दी रखी होगी कब होगा कंपटीशन, अगर नहीं दिया है तो आप अपने दिमाग से अपने कोई भी मर्जी से कोई भी डेट लिख सकते हैं। जैसे कि आज 8 जुलाई है, यू कैन प्रेफर 10 जुलाई, 15 जुलाई, जो भी आपको सही लगे। ये नहीं कि 8 जुलाई है और आप डेट लिख रहे 18 अगस्त की, या फिर 8 जुलाई है आप डेट लिख रहे 10 जून की, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो नॉनसेंस ही मिस्टेक हो जाएगी। फिर वेयर हो गया, फिर वेयर, कहाँ पे कंपटीशन होगा? आर्ट क्लब में होगा, स्कूल असेंबली एरिया में होगा, लाइब्रेरी में होगा, कोई भी एरिया में कंपटीशन होगा उसके बारे में। वाई, कैसे कंपटीशन होगा कि बच्चे लोगों को कलर्स जो रहेंगे वो स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे या फिर खुद से लेके आना है, आर्ट शीट वगैरह जो भी रहेगी वो स्कूल वाले प्रोवाइड करेंगे कि दैट इज, या फिर स्टूडेंट्स को अपने घर से लेके आना, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। फिर हाउ, कैसे कंपटीशन होगा? तो ये क्वेश्चन जब आप याद कर लेंगे तो कोई भी नोटिस आपको लिखने के लिए आएगा, यू कैन इजीली राइट डाउन द मैटर बाय योर ओन। फिर इतना लिखने के बाद अब क्या होता है कि जो मैटर भी होता है वो ज्यादा लंबा नहीं लिखना पड़ता, नोटिस बहुत शॉर्ट आती है। अगर नोटिस राइटिंग का कोई क्वेश्चन आएगा पेपर में, आएगा तो डेफिनेटली, तो उसमें क्या रहता है कि उसमें आगे लिख दिया जाता है कि वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की होनी चाहिए, 50 वर्ड्स से ज्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि आप 100 वर्ड्स की नोटिस लिख रहे हो। नोटिस एक बहुत छोटी सी चीज होती है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी रहती है, ज्यादा लंबा नहीं होता है कि आप ऐसे लिख रहे हो या फिर कोई पैराग्राफ राइटिंग लिख रहे हो, उसकी तरह नहीं होता है। फिर नेक्स्ट आता है नेम और डेजिग्नेशन। अब क्या होता है, जब पूरा मैटर लिख लेंगे फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखना है, नेम लिखना है और डेजिग्नेशन लिखना है। अब नेम लिखने में क्या होता है कि बहुत बार क्वेश्चन में ही प्रोवाइड रहता है नेम, अगर नहीं प्रोवाइड है तो आप अपना नाम लिख सकते हैं। डेजिग्नेशन भी दिया रहेगा, क्या पता है हेड बॉय हो आप या फिर सेक्रेटरी क्लब के हो, सेक्रेटरी हो किसी क्लब के, तो वो सारी चीजें तो क्वेश्चन में प्रोवाइडेड रहती है। अदरवाइज नहीं भी रहेगी तो आप अपने आप से भी कोई भी डेजिग्नेशन डाल सकते हैं। Later on you will have your signature and this is the whole format of writing notice। एक बार फिर से देख लेते हैं। पहले इंस्टीट्यूशन का नेम आएगा, फिर एक लाइन छोड़ के डेट लिखी जाएगी, फिर एक लाइन छोड़ के नोटिस की हेडिंग, फिर एक लाइन छोड़ के टाइटल छोटा होना चाहिए, फिर मैटर आएगा जिसमें हम लोग व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देंगे। उसके बाद अपना नाम लिखेंगे या फिर जो भी नाम आपको क्वेश्चन में दिया गया उसको प्रेफर करेंगे एंड लेटर ऑन यू विल हैव योर डेजिग्नेशन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये सारी की सारी चीजें एक बॉक्स के अंदर बंद रहेगी, बॉक्स से बाहर कोई भी चीज एक्सीड नहीं करेगी। So now we will see one example. So this is the question which I have written on the board. The question is, you are Rohan Ridhima. Your school is going to organize a drawing and painting competition. Inform the students about the competition and enroll them. Word limit 50 words. This is the question. और ये क्वेश्चन में अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करेंगे जो कि हमारे नोटिस राइटिंग में लिखने में जरूरत आएगी। अब देखिए, नोटिस राइटिंग में सबसे पहली चीज होती है वर्ड बनाना, ठीक है। फिर आता है इंस्टीट्यूशन का नाम। तो क्या इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूशन का नाम दिया गया है कि नहीं दिया गया है? तो आई कैन नॉट फाइंड, इसमें कहीं पे भी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं दिया गया है, कोई स्कूल का नाम दिया हो, कुछ नहीं। हाँ, बट ओवर हियर इट इज रिटन योर स्कूल, आपका स्कूल। तो आपका स्कूल मींस आपका स्कूल का जो भी नाम हो आप प्रेफर कर सकते हैं। फिर इंस्टीट्यूशन के बाद डेट आती है, डेट तो नहीं दिया गया है, हालांकि डेट तभी लिखी जाती है जिस वक्त आप नोटिस राइटिंग लिख रहे होते हैं, उस वक्त की डेट लिखी जाती है। फिर है नोटिस की हेडिंग आ जाएगी, नोटिस की हेडिंग के बाद आती है टाइटल। अब टाइटल क्या है? अब ये जो नोटिस है ये किसके बारे में लिखी जा रही है? ये नोटिस इसी के बारे में लिखी जा रही है कि स्कूल में एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज होने वाला है। सो यहाँ की जो हम लोग कह सकते हैं टाइटल क्या हो जाएगा? इट विल बी ड्राइंग एंड
पेंटिंग कंपटीशन, दैट्स इट। जैसे कि मैंने बताया था कि जो टाइटल होता है वो शॉर्ट होता है, छोटा होता है, ज्यादा एक्सटीड हमें नहीं लेना है, ज्यादा बड़ा हमें नहीं करना है। सो इतना ही रह जाएगा टाइटल ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। तो इतना हमें तो क्वेश्चन के अंडर मिल गया। फिर टाइटल के बाद क्या जाएगा, व्हाट, व्हेन, वेयर। अब व्हाट क्या होने वाला है स्कूल में, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन होने वाला है। व्हेन तो डेट तो दी नहीं गई कि कब होगा, आप कोई भी डेट इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ होगा, यू कैन यूज योर ओन माइंड, योर विश, क्या पता। जैसे ड्राइंग पेंटिंग कंपटीशन है, अब इसमें तो वेन्यू दिया नहीं गया क्वेश्चन में, तो आप देख सकते हैं कि आर्ट रूम में होगा, स्कूल का जो आर्ट रूम है वहां पे कंपटीशन ऑर्गेनाइज होगा। फिर हाउ एंड व्हाई, तो ये तो आप अपने आप से लिख सकते हैं कि कैसे कंपटीशन होगा और कब होगा। अब यहाँ पे बात आती है, लास्ट में जो आता है वो होता है नेम एंड डेजिग्नेशन। अब यहाँ पर डेजिग्नेशन तो दिया नहीं गया है, कहीं पे भी आप डेजिग्नेशन तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ नेम आपको प्रोवाइडेड है। बॉयज के लिए रोहन है, गर्ल्स के लिए रिद्धिमा है। अब जब नाम यहाँ पर दिया गया है तो आप अपना नाम प्रेफर नहीं कर सकते हैं। You will write, if you are boy then you will write Rohan, and if you are girl then you have to write the name of Riddhima. Later on designation यहाँ पे कोई सी दी नहीं गई है, तो आपका जो मन कर सकता है वो डेजिग्नेशन आप दे सकते हैं। आर्ट्स क्लब के सेक्रेटरी हैं ये लिख सकते हैं, या फिर आप हेड बॉय हेड गर्ल भी लिख सकते हैं स्कूल का। तो चलिए इसका एक बार लिखने का फॉर्मेट देख लेते हैं। Solution of the question is, firstly you have to prefer your school name। अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तो डेफिनेटली आप वही नेम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया गया था कि दैट यू हैव टू राइट योर ओन स्कूल नेम। सो माय स्कूल नेम इज देयरफॉर स्कूल मैंने डाल दिया। लेटर ऑन यू हैव टू राइट द डेट, सो 8 जुलाई 2023, नोटिस की हेडिंग, उसके बाद टाइटल ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन। फिर आएगा मैटर, जिसमें दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट द आर्ट क्लब ऑफ द स्कूल is going to organize a drawing and painting competition on 10 July 2023. All the students are requested to display their drawing and painting in the exhibition hall. Interested students can give their name to class teacher Rohan, secretary. तो यहाँ पे जो मैटर था उसमें वॉच का आंसर मिला कि क्या है, ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन है। व्हेन 10 जुलाई 2023 को है। वेयर आर्ट रूम में, ऑलरेडी गिवन दैट आर्ट क्लब में होगा, ठीक, आर्ट क्लब ऑर्गेनाइज करा तो आर्ट रूम में होगा। सो व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, कैसे एंड व्हाई, उसमें दिया गया है ना कि दैट स्टूडेंट्स विल हैव टू डिस्प्ले देयर ड्राइंग्स ऑन देयर वॉल, एंड हाउ इट विल बी डन, दैट दे हैव टू गिव देयर नेम टू देयर क्लास टीचर। उसके बाद नेम ऑलरेडी प्रोवाइडेड था क्वेश्चन में, तो लिख दिया रोहन, और उसके बाद सेक्रेटरी। ओके, हालांकि अगर जो भी डेजिग्नेशन आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो वो आप रेफर कर सकते हैं। If you want to take the screenshot, you can take the screenshot of this. So now I am going to give one question to you, and you have to write the notice by your own. So this is one practice question for you. You are the health secretary of your school health club. Write a notice to inform the students about cleanliness drive around the school and request them to enroll for the volunteers. Word limit 50 words. तो ये है क्वेश्चन नोटिस राइटिंग के लिए, जिसको आपको अपने आप से करना है। एक एग्जांपल मैंने दे दिया है। तो कुछ हेल्प मैं कर सकता हूँ, लाइक few information I can mark on this question which you have to use in your notice writing. Firstly, you have to go through with your institution name. So although in this question institution name has not been provided, so what you have to do, you have to write your school name. Later on the date will be the time when you are going to write. Later on notice heading, and then title. So what will be your title? Your title will be cleanliness drive. Okay, your title will be cleanliness drive. Later on you will have matter, what, cleanliness drive, when, the date which you will feel like, where, definitely in the school campus only, how and why, you can write your own. Later on what it will be, name, although here name has not been provided, so this time you can write your name. And next will be your designation. Here designation has been given, health secretary. So this will be your designation, health secretary.
So this is the question. I have marked few things in the question which you have to use in your notice. The word limit will be 50 words only, so do have the practice of it. So I hope that you would have liked this video. Do share and subscribe it. Thank you.